students. Today I am going to discuss pine disease. Pine is the native of the inter ranges and principal valleys of the Himalaya, belonging from the Afghanistan in west, ending the Bhutan in the east. It extends to Pakistan, India, and Nepal. In India, its forests are found in Jammu Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, parts of the Sikkim, West Bengal, and Arunachal Pradesh. The total area under the Cheer forest estimated to be a 8 lakh 90,000 hectares and occurs between 450 meter to 2,300 meter altitude. Cheer pine forms pure forest its habitat, but it is upper and lower limits occur mixed with the other conifers and broad-leaved species through rarely it is upper limit and found in association with deodar, khel, banj, oak, buras, etc. and in the lower limits with sal, sen, khair, harad, bahira, amla, and why we are going to study the cheer pine disease, because the cheer pine is provide variety of wide ranges goods and services to people. In fact, all parts of trees are valuable and used in one or from the others. It's a popular timber of North India, especially in hills, and is used for the various purposes, including the houses, buildings as refer, pole and posts, doors and window, uh, flooring blocks, packing boxes, boats, railway sleeper, and in the manufacture of the pulp and paper. It's suitable for boat building, tea, chest, sports article, bodies of the matchsticks, oars. Various uses of the species are in the uh, species are in the uses of cheer pine. So we want to want to study the cheer pine. Cheer pine is a scientifically known as the Pinus roxburghi family coniferae, and the this is one of the six pines of India. इंडिया में इसके छः प्रजातियां हैं, एंड द मोस्ट वाइडली अकरिंग एट आल्सो इन हिमालयन long needle pine, long lived Indian pine, Indian cheer pine, cheer or chill. The vernacular name of the species of the are कुलदिन, सरोल, सिरल, ये गढ़वाल और जौनसार में बोली जाती है. चीर इन हिंदी पंजाबी, नित इन लैपचा, एंड द धूप इन नेपाली, धूप इन नेपाली. तो ये जो हमारी जो चीर है, ये एक चीर का पेड़ है, और हम देखते हैं तो चीर का पाइन पेड़ जो है बड़ा पेरिनियल होता है, और पेरिनियल के साथ साथ ये जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल प्लांट है. ये इसलिए इसकी स्टडी को, इसलिए हम इसकी डिजीज, इस पर लगने वाली डिजीज़ को जो स्टडी करते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल इकोनॉमिकल प्लांट है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट और हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो इससे रेवेन्यू प्राप्त करती है इसके लकड़ी से. इसकी लकड़ियाँ जो हैं, जो जैसे कि कई प्रकार के यूजेज होते हैं. अगर हम देखें तो चीड़ के पाइन की कुछ डिजीज़ जो है इस प्रकार की होती है. आप देख रहे होंगे इसमें दोनों प्रकार के रूट दिख रहे हैं, नीडल ब्लाइट भी दिख रहा है, और नीचे जो है ये जो है रूट रोटिंग भी दिख रही है. तो कुछ इस प्रकार के इसके पौधे जो रोगग्रस्त होते हैं. तो अगर हम नीडल ब्लाइट की बात करें, ये जो नीडल ब्लाइट है, ये अगर आप देख रहे हैं पत्ती जैसे झुलस गई हो, जैसे हम नीडल ब्लाइट कहते हैं. और अगर हम इसकी बात करते हैं तो नीडल ब्लाइट की हम बात करते हैं तो नीडल ब्लाइट जो है में जो है ये ट्रेमेस्ट्रोमा नीडल ब्लाइट होते हैं. द डिजीज अकर्स वाइडली इन द उत्तर प्रदेश. ट्री ऑफ ऑल रेंजेस आर अफेक्टेड. द नीडल appear pale brown from tip downwards, presenting the light appearance. और इसका जो पैटर्न है वो कोलेस्पोरियम नीडल रस्ट है. कोलेस्पोरियम commonly occurs in the cheer pine throughout the ranges. On its distribution, it is heteroecious and macrocyst cyclic rust, alternating between cheer and Campanula colorata. ये जो है, ये जो चीर पाइन है, ये जो है हाइड्रोसिस का मतलब होता है कि ये जो है हाइड्रोसिस का मीनिंग होता है कि ये जो है अपना जीवन जो है दो पौधों के बीच पूरा करता है, जैसे कि हमारा पक्षिनिया करता है, एक किनगोल और उसके बीच
किनगोड और गेहूं के बीच, ऐसे ये भी जो है इसका जो जो ट्रेमेस्टोरमा नीडल ब्लाइट है, ये जो है दो उसके साथ अपना जीवन पूरा करता है, इसलिए हम इसे हेट्रोसियस स्पीशीज कहते हैं। और मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है, बहुत लंबा जीवन अपना करती है। और चीर पाइन जो 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 वीड है, जो इसके आसपास जो वीड है जिस पे ये अपना जो दूसरे जीवन जो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है, वो जो है उसका नाम है कैम्पेनुला ओलोरेटा। ये आप देखेंगे कैम्पेनुला ओलोरेटा। एंड द एशिया appears in the cheer natives in November and later during the February March, and where the Eurydiana and Talia are the develop on the leaf and stem of कोलोरोटा फ्रॉम द मार्च टू सितंबर। मतलब ये जो है इसकी जो एशिया जो एशिया स्पोर हैं वो चीर पाइन में जो है नवंबर और दिसंबर में दिखते हैं, और फरवरी मार्च में ये जो है फरवरी मार्च के बाद दिखते हैं। और उसके बाद जो है यूरिडिना टेलिया डेवलप इन द लीव्स ऑफ स्टेम। ये जो कैम्पेनुला कोरोलेटा है, इसमें जो है ये दिखता है मार्च टू सितंबर, और ये जो है ये इस पूरा साल भर इसका साइकिल चलती है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार के इसके जो है ये इस प्रकार ये स्पोर है इसका, और ये स्पोर में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। ये इसका दूसरा होस्ट है जिसको हमने कैम्पेनुला कोरोलेटा कहा, अल्टरनेट होस्ट ऑफ द कोलेस्पोरम कैम्पेनुली, उसका जो है ये जो है अल्टरनेट होस्ट है। ये अगर आप देखते हैं तो ये कुछ फोटोग्राफ है कि ये ऊपर से नीचे को सूखते हुए पत्तियां आती हैं। अगर आप देखेंगे पत्तियां ऊपर से नीचे को, पत्तियों का जो टिप है, टिप पे जो है ऊपर टिप से जो नीचे को सूखती हुई आती हैं। और अगर हम बात करते हैं तो ये अगर हम एक दूसरी बात करते हैं रूट रोटिंग की, रूट रोटिंग का मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था रूट रोटिंग का। ये जो है रूट रोटिंग, ये रूट रोटिंग है, और ये रूट रोटिंग का मैंने आपको डायग्राम बताया था। रूट रोटिंग जो है ये जो है फाइटोफथोरा स्पीशीज से होती है। इसमें जो है फाइटोफथोरा की जो एक सिन्नामोमी है और एक जो है सिट्रिकोला है। ये जो है ये सबसे पहले जो है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी प्लांट क्लिनिक में इसको जो है वो रिपोर्ट किया गया था। रूट इज ए प्रॉब्लम व्हेन ट्री आर प्लांटेड, इट कंटेन्स planted in the areas with poor drainage or where floating occurs. It is mainly problem in nurseries that use overhead irrigation during the growing season. Can also be a problem. Tree are the planted for the seed production. The pathogens can infect roots under the waterlogged and soil condition. ये जो है ये जो प्रॉब्लम आती है ये आती है जब पानी ज़्यादा जो है हो जाता है, वाटर लॉगिंग होती है। और अगर उसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, अगर पानी जो है निकासी नहीं होती है तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम के कारण जो है ये इसमें जो है होता है। और ये जो है जब द पैथोजन कैन इन्फेक्ट रूट अंडर द वाटर लॉग, जब पानी जो है भरा हुआ हो और सॉइल में जो है पानी भरा हो, तो उस समय ये जो है ये जो इसका जो फाइटोफथोरा में जो है एक सिन्नामोमी एंड सिट्रिकोला की जो स्पीशीज है ये रूट रोटिंग करते हैं। और ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रूट रोटिंग। और एक जो है धोतिस्ट्रोमा भी स्पीशीज है जो कि वो जो है पाइन को इन्फेक्ट करते हैं, और भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये इसके सिम्टम्स हैं, ये देख लीजिए आप इसके ये इसके सिम्टम्स है। और ये जो है इसका देख लीजिए आप, ये इसका रूट जो नीचे से काला होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो रूट काला हो रहा है। वाटरिंग सोर पाइन लॉन सेटिंग हार्ड ऑन द ट्री एंड दे आर अडॉप्टेड एंड ड्राई समर फॉल कंडीशन। द ये पेंसिल्वेनिया PNW जो पेंसिल्वेनिया नॉर्थ वेस्टर्न जो है वाटरिंग कैन इंक्रीज रूट रॉट डिजीज कॉज द फाइटोफथोरा स्पीशीज। एंड एक और स्पीशीज जो है PNW जो पेंसिल्वेनिया नॉर्थ वेस्ट जो है ये इसने जो है फाइटोफथोरा की और स्पीशीज रिपोर्ट की जिसको अर्मिलेरिया है। और ये जो है ये स्पीशीज जो है मुंगो पाइन में जो पाइनस मुंगो पे जो इन्फेक्ट करता है ये और अफेक्ट करता है ग्रोथ इन ऑर्नामेंटल कंटेनर। नर्सरीज आर ऑफन ससेप्टिबल इन द to this disease seedling of लॉज पोल पाइन। और ये जो है पाइनस कंटोटा एंड पाइनस पेंडोरोसा जो है पेंडोरोसा आर कंसिडर्ड हाईली टॉलरेंट वाइल सुगर पाइन एंड वेस्टर्न वाइट पाइन एंड कंसिडर्ड टू बी टॉलरेंट when challenge inoculated with 5 species that did not include Pinus cinnamomum। तो कुछ टॉलरेंट स्पीसीज है जो कि पाइनस कंटोटा है, पाइनस
लेबरियाना है और पाइनस मोंटिकोला है। ये कुछ हैं जो कि इस प्रकार की, जिनमें कि इस प्रकार की डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है अदरवाइज। और हमें ये जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। इसमें जो है कुछ अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ जो जो वो होती है, जो हमारी ये रूट की बार्क तक जो है सिल्वरी हो जाती है, और सिल्वरी होने के बाद जो है ये रूट की बार्क सिल्वरी होने के बाद जो है उखड़ जाती है, अपने अपने स्टेम से अलग आ जाती है। द ऑर्गेनिज्म अटैक द रूट विच रोट एंड डाई। द इन्फेक्शन मूव इनटू रूट क्राउन वेयर द कैम्बियम सॉफ्ट इनर बार्क टर्न्स रेडिश ब्राउन इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल ग्रीनिश। मतलब ये जो है हल्की जो है ब्राउन हो जाती है, और ये जो है हल्की जो है इसके जो वो है जो बार्क है वो जो है क्या हो जाती है, वो अपने स्टेम को छोड़ने लग जाती है। और ओल्डर ट्रीज में डेवलप कैंकर ऑन द ट्रंक पॉसिबली accompanied by the split bark and organizing pitch lower branches wilt turn brown and die back. Younger trees are often die uh, outright when the infect. A mature trees once infected may show wilting, branch dieback and other sign of the inhibit. अगर जो है ये जब इन्फेक्शन करता है, अगर ये इन्फेक्शन करता है तो ये इसकी जो यहाँ तक कि ये जो है बार्क के साथ साथ जो है डायबैक डिजीज और विल्ट भी शुरू कर देता है अगर इसका इन्फेक्शन हो गया। तो इसके लिए हमें जो है कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, अगर हमें इसको चेंज करना है तो अवॉइड सॉइल कंपैक्शन वाइल रिड्यूसेस ड्रेनेज। हमें जो है हमेशा मिट्टी को जो है संघनन से, कंपैक्शन का मतलब संघनन होता है, हम जो है मिट्टी को जो संघनन होने से बचाना, मतलब वो कॉम्पैक्ट ना पाए, विच रिड्यूस द ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन हैवी फुट ट्रैफिक और मैकेनरी कैन काउज सॉइल कंप्रेशन। जब हम पाँव रखेंगे जो मिट्टी होगी उसके ऊपर जैसे जैसे पाँव रखेंगे वैसे मिट्टी जो और कॉम्पैक्ट होती जा रही है, और उसके कारण क्या हो जाएगा, मिट्टी जो है जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो इसके कारण जो है इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना होती है। इम्प्रूव सॉइल ड्रेनेज बाय द इन इनकॉर्पोरेटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग रेज बेड्स। हमें जो है क्या करना है, हमें जो है सॉइल को ड्रेनेज को बनाना है, सॉइल की जो है जो मिट्टी है मिट्टी की निकासी में पानी की निकासी को निकालना है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर यूजिंग रेज्ड, और हमें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जैसे खाद मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर को हमें यूज़ करना है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल और यूजिंग रेज बेड। और हमें जो है रेज बेड का मतलब होता है कि हमें जो है ज़मीन से जो है उठ के जो है उसके जो है पानी का जो है लॉगिंग करनी है। रेज बेड अगर आप समझते होंगे तो जब हम कोई नर्सरी डालते हैं तो अक्सर उसके चारों तरफ जो हम एक ड्रेनेज बना देते हैं, उसको रेज बेल्ट कहते हैं। अगर हम किसी भी छोटी छोटी नर्सरीज डालते हैं तो उनके हर 2-3 फीट के बाद हम जो है एक ड्रेनेज बना देते हैं, एक जो है निकासी के लिए जो है निकासी प्रबंधन के लिए छोटी छोटी फरो बना देते हैं, तो वो जो है उसके कहते हैं रेज बेल्ट कहते हैं। तो ये जो है हम कहते हैं प्लेस कंटेनर और ग्रेवल बेड्स 4 इंच और मोर डीप। जो हमें जो है कंटेनर जो जिसमें हम इनको उगाते हैं ग्रेवल बेड, और हमें जो रेत डालना है 4 इंच और मोर। अलाउ टू ड्रेनेज, ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है, मतलब निकासी बहुत ज़रूरी। डू नॉट प्लेस कंटेनर ऑन पॉली सीट्स। अगर हम जो है कंटेनर को जो है पॉली सीट्स में कन्वर्ट करते हैं तो दे कैन प्रिवेंट। डू नॉट प्लेस कंटेनर्स ऑन पॉली सीट। अगर हम जो है कंटेनर को जो लेते हैं तो दे कैन प्रिवेंट कंटेनर्स फ्रॉम ड्रेनिंग इनटू सॉइल एंड अलो कंटेमिनेटेड ड्रेनेज। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो है इसको जो है कंटेमिनेटेड सॉइल को जो है जो कंटेनर में जो सॉइल होगी वो जो है इनटू सॉइल एंड अलो कंटेमिनेटेड ड्रेनेज वाटर टू स्प्रेड फ्रॉम बेस वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। अगर हम जो है ऐसा करते हैं तो इससे जो है उसकी वो डिजीज होने की संभावना रखते हैं। अब अवॉइड रीयूजिंग पोस्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप फॉर प्रोपगेशन। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है एक ही जो है क्रॉप को न लगाएं और उसको चेंज करें। इफ़ पोस्ट मस्ट बी रीयूज्ड वॉश ऑफ ऑल डेब्रिस। अगर ज़रूरी है तो हमें जो सारी मिट्टी को हमें चेंज वॉश करना एंड सोक इन सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन और ट्रीट विथ एरेटेड स्टीम और 430 मिनट। हमें जो है 430 मिनट्स हमें जो इसके लिए जो है हमें अगर हम उसी जगह को यूज़ करें तो हमें उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, सोलराइज करना पड़ेगा और उसको जो एरेटेड स्टीम देनी पड़ेगी और उससे जो क्या होता है फंगस मर जाती है। प्रिवेंट डिजीज बाई प्लांटिंग पैथोजन फ्री मटेरियल इन अनफेक्टेड सॉइल। कोशिश हमने ये करनी है कि हमें जो है हमें जो है उसको जो है प्लांटिंग ओनली
पैथन फ्री, हमें ऐसी जगह उगाना है जहाँ पैथन नहीं होती। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय ऑल इन्फेक्टेड प्लांट एंड प्लांट डेब्रिस, हमें वो जो है वहाँ से जो इन्फेक्टेड प्लांट्स उनको हटाना है, उस मिट्टी को भी हटाना है। तो ये जो है हमारे कुछ कल्चरल प्रैक्टिस है जो हमें चेंज करने, जिसके कारण में प्लांट में जो है इन्फेक्शन न हो ना पाए। केमिकल कंट्रोल, इसके लिए जो है हमें केमिकल कंट्रोल के लिए हमें जो है फॉर रेसिस्टेंट मैनेजमेंट रोटेट फंजिसाइड एंड द हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन, हमें जो है चेंज करना है। हमें जो है बैंड्रोट 40 WP का मतलब होता है वेट टेबल पाउडर, जो WP का मीनिंग होता है वेट टेबल पाउडर। 6 to 12 ओज जो है, जो ओन्स जिसको हम कहते हैं उसे ओज कहते हैं। 100 ग्राम वाटर ग्रुप इंटू 1+14 फंजिसाइड फॉर 12 आवर रेंट्री। और जो है फॉस्फाइट 1 to 2 क्वार्ट्स पर 100 गैलन वाटर। डू नॉट कॉपर प्रोडक्ट्स विद 20 days एंड ट्रीटमेंट एंड डू नॉट यूज स्प्रे एडजुवेंट्स, हमें ये भी कोशिश करनी कि हम उस समय कोई और चीज़ का जो है हम स्प्रे न करें। और स्प्रे जो है, और इसका जो ग्रुप ऑफ 33 फंजाइज 4 आवर्स री हमें जो है री एंट्री करनी पड़ेगी हर 4 घंटे में। और ये जो मेफ जो हमारा जो है ये वेफनॉक्साम जो 2 aqueous solution एट 0.98 to 1.96, जो ये जो फ्लोएविल ओंस होगा 100 ग्राम वाटर के साथ एज सॉइल ड्रेंच। और 1.23 to 2.45 फ्लोएविल ओंस 100 स्क्वायर फॉलोड बाय द लीस्ट 0.5 इंच रेन और इरिगेशन ग्रुप और फॉर फंजिसाइड रिसेंटली। और हमें जो है फास्फोजेट इज रजिस्टर्ड फॉर द ट्री इंजेक्शन। रेट्स आर बेस्ड ऑन ट्री साइज। ग्रुप 33 फंजिसाइड फॉर री एंट्री। और हमें टेराजोल 35 WP वेटेबल पाउडर है एट 3.5 to 10 ounce पर गैलन वाटर। और हमें जो है ग्रुप जो फंजिसाइड के बने जो कॉम्बो बने होते हैं वो ग्रुप 30, ग्रुप 14, ग्रुप 32 एंड इसको जो हमें हर 12 घंटे में इसको री एंट्री करनी है। टर्बान 33 to 10 ounce पर 100 गैलन वाटर। और ग्रुप 14 फंजिसाइड यूज़ करना है हर 12 घंटे में। तो इससे हमारी डिजीज कंट्रोल हो जाएगी, और ये से हमारी डिजीज कंट्रोल हो जाएगी। ये जो है कुछ और पैथोजन है जिसमें कि हम कह सकते हैं ये साइक्लोनोस्टिमा डिडल कास्ट है। साइक्लोनोस्टिमा डिडल कास्ट जो है ये जो है, और जो मुंगो पाइन है उस पर लगता है। स्कॉट्स एंड अर्सन पाइन्स आर येलो एंड डार्क ब्राउन बैंड्स फ्रॉम द September थ्रू December ईयर आफ्टर इन्फेक्शन फ्रॉम द April थ्रू June 2 years after infection, the brown bars become filled with the 10 fungal fruiting structure which opens wide under very moist condition। इसके बाद इसका जो वो है, इसका जो पैथोजन है उसका नाम है साइक्लोनेज्मा माइनस, ये जो है इसका है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए स्पेस प्लांट कंट्रोल वीड टू एंश्योर गुड एयर सर्कुलेशन, हमें जो है पौधों के बीच दूरी रखनी है और अच्छा जो है उनके बीच जो है एयर सर्कुलेशन हो अराउंड द ट्री। अप्लाई फंजिसाइड फर्स्ट इन मिड मार्च, हमें जो है फंजिसाइड फर्स्ट इन मिड मार्च में डालना है। अर्ली मई टू जून, मिड अगस्त एंड मिड अक्टूबर टू प्रोटेक्ट नीडल सिंस दे कैन अटैक एनी टाइम द टेम्परेचर इज अबव 32 फ़ारेनहाइट एंड वाटर इज ऑन द नीडल्स। हमें जो है जब हम इसको करेंगे तो हमें जो है उस समय हमें इसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें ये टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी। और एक और है और एक और डिजीज है प्लियोडर्मा नीडल कास्ट। ये जो है इसमें भी जो है क्या होता है, मार्च टू मई जो है इन्फेक्शन जो है रेड ब्राउन हो जाता है। जो लीफ है स्पॉट लेफ्ट एंड नीडल टिप ऑफ नीडल ग्रिडल्ड बाय स्पॉट डाई वाइल नीडल बेसेस रिमेन ग्रीन एंड needles remain attached to twig black fungal fruiting structure that look like lines. The needle the dead area of the needle form or needle are cast in May through June the after infection। ये जो है इसकी वो है सिम्टम्स है। इसके लिए प्लियोडर्मा लीथल है इसका जो है। पहले जब हम इसको
हाइपोडर्मा के नाम से जानते थे, और जो ये स्किल पे होता है। और स्पेस प्लांट्स एंड कंट्रोल वीट एंश्योर गुड एयर सर्कुलेशन। सब में यही कि हमें अच्छा जो है एयर सर्कुलेशन रखना है। अप्लाई फंजाइड 3 टाइम्स वीक इंटरवल्स बिगिनिंग इन लेट मई के महीने हमें ये करना पड़ेगा, और हमें फंजाइड यूज़ करना पड़ेगा। और यूज़ करने के बाद वीकली जो हमें कम से कम 3 बार करना है। और ये एक और स्पीशीज है जिसको हम क्या कहते हैं, लोफोडर्मियम, जो डर्मियम निडल कास्ट, ये भी पत्ती का ही करता है। और इसका जो है लोफोडर्मियम जो इसका नाम है। और ये जो है मार्च टू मई ईयर फॉलोइंग इन्फेक्शन नीडल और लोअर ब्रांचेस turn completely brown and fall black fungal fruiting structures that look like lines in the dead on the needle form on the uh, uh, sorry area needle ये जो है लोफोडर्म प्लूडर्म लोफोडर्म सॉरी लोफोडर्म, ठीक है। तो ये जो लोफोडर्म है ये जो है डर्मियम द ब्लैक फंगल फ्रूटिंग बॉडी दिखेगी। और इसमें जो है इसका जो है स्पेस प्लांट एंड कंट्रोल वीड्स एंश्योर, हमें आसपास में वीड्स को नहीं, मतलब खरपतवार नहीं रखना चाहिए। स्पेस प्लांट हमें प्लांटिंग स्पेस करें। कंट्रोल वीड एंश्योर द एयर सर्कुलेशन अराउंड 3 एंड अप्लाई फंजाइड 3 टाइम्स beginning and mid July and week intervals. However, if early summer it's warm begin, है ना। ये एक और है पाइन गाल रस्ट, ये भी बहुत अक्सर आता है। पाइन गाल रस्ट जो है ये जो है आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो है पौधे में एक जो है पूरा गाल बनाया हुआ है, और उसमें जो है पूरा जो है स्पोर बने हुए हैं। मैनी राउंड गाल फ्रॉम द ब्रांचेज एंड लार्ज अप टू सेवरल इंचेस डायमीटर, बहुत बड़ा होता है। अप्रोक्सीमेटली 15 months आफ्टर इन्फेक्शन masses ऑफ येलो स्पोर्ट्स erupt फ्रॉम द गाल्स एंड इन्फेक्ट न्यू पाइन सूट्स। ये जो है स्पोर इसमें इकट्ठे होते हैं, और इन रेगुलर जो है नई जो है ब्रांचेस को जो है अटैक करने लग जाता है। और इसको जो है इसका जो पैथोजन है वो है एंडोक्रेमियम क्रेटिमियम हकनेशाई है। और ये जो है इंस्पेक्ट प्लांट वेरी carefully and prune all the galls. Inspect all newly purchased seedling carefully for galls. Destroy infected seedling. Apply fungicide of new needle emerge and again 2 weeks later. ठीक है, ये इसके वो है। ये एक और है डिप्लोडिया टिप। ये जो डिप्लोडिया टिप ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। डिप्लोडिया टिप इसमें जो है ऊपर जो लीव्स होती है, लीव्स में जो है लीफ में जो है अटैक होता है। और ये जो अक्सर जो है अटैक इन द स्प्रिंग एंड कैंकर फॉर्म द बेस ऑफ द न्यू सूट्स रेजिन ओज फ्रॉम द कैंकर द दिस ऑफन अकर्स स्कैटर्ड ब्रांचेस लो एंड ट्री एट द फर्स्ट। ये जो है ये जो टिप है, ये टिप जो है जो डिप्लोडिया टिप है, ये अक्सर जो हमारा कोन होता है, कोन के आसपास की जो जितनी भी लीव्स होती है उनको ये अटैक करता है। इसको भी हम पहली बार डिप्लोडिया को पहले जो हम इस फेरियोप्सिस के नाम से जानते थे। और इसमें भी हमें यही करना है कि डो नॉट प्लांट यंग हेल्थी एंड 3 नीडेड पाइन नियर ओल्डर इन्फेक्टेड पाइन। हमें कोशिश करना है कि हम दोनों को इंटरमिक्स न करें, नए जो इन्फेक्टेड प्लांट है उनको अलग करके ही इसको लगाएं। रिमूव इन्फेक्टेड ट्विक्स, हमें कोशिश करना है कि प्लांट से जो है ट्विक्स हटा देनी है। अमाउंट एंड फंगस इन 3 अप्लाई फंजाइड बिगिनिंग एंड एज ए बेड स्वेल इन द स्प्रिंग एंड रिपीट इन एप्लीकेशन अंटिल द नीडल्स रीच फुल साइज। हमें तब तक लगाते रहना और हमें इन्फेक्टेड टिप हटानी है। और उसके बाद जो है हमें जो है फंजाइड यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ये स्वेलिंग आती है वैसे जो हम इसको देंगे, और जब तक कि इसका जो है पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता है तब तक हमें ये देता रहना चाहिए। स्प्रेइंग एट अनदर टाइम्स नॉट इफेक्टिव, डो नॉट अप्लाई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। हमें ये भी ध्यान रखना कि हमें इसमें कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं यूज करना है। एक रूट रोटिंग है, इट्स वेरी कॉमन रूट रोटिंग। ये जो है रूट रोटिंग the tree particularly white pine are stunned
मतलब ये रुक जाती है बिफोर एनी अदर सिम्टम्स अपीयर। इन्फेक्टेड ट्रीज decline, yellow, wilt and die. Dead needles remain attacked. Resin ooze from attached, जो dead है वो जो है attached होती हैं। Resin ooze from girdling canker at the soil line, जो resin वाला जो पोर्शन है और जो है इसी से जो ये resin ooze from the girdling canker at the soil line or several inches above the soil wood beneath the bark where resin is oozing chocolate brown black। अगर जो है रेजिन कैनाल हैं अगर उनसे जो है उन पे उनके थ्रू ये जो है इन्फेक्शन करता है और इसका जो है जो इन्फेक्शन है वो इसका जो इन्फेक्शन है वो वर्टी सिक्लेडिला प्रोसेरा है। वर्टी सिक्लेडिला प्रोसेरा है और ये जो हमें द ट्री मोस्ट सस्पेक्टिंग एरियाज ओन वंस ग्रोइंग ऑन पुअर साइट फॉर द पाइन्स रिमूव इन्फेक्टेड ट्रीज एंड द डू नॉट रिप्लेस देम विद पाइन। अगर इस प्रकार की इन्फेक्शन है तो हमें उसको जो है हटा देना है। और फिर एक ये है वाइट पाइन ब्लिस्टर रस्ट। इसमें जो है जो पाइन के जो कोन्स होते हैं उनमें जो है रस्ट लग जाता है। ब्लिस्टर रस्ट, ब्लिस्टर वाइट pine develop swollen canker and the trunk branches. Resin flow from canker, powdery yellow and cream colored spores erupt from the canker in May through July to 3 season. After the infection, branches and entire trees are girdled in the dye। ठीक है, ये इसका जो है इसका जो स्पीसीज है वो है कॉर्नेटियम रेविकोला है जो इसका पैथोजन है। एंड दिस इज डिस्ट्रॉय द होल प्लांट एंड फाइनली प्लांट जो है मर जाता है। और ये जो है अक्सर इसके जो वो होते हैं ये जो पाउडर येल्डो और क्रीम कलर जो इसके स्पोर होते हैं और ये जो है मई से जुलाई तक 2 to 3 सीजन ये जो है आफ्टर इन्फेक्शन जो है ये ब्रांचेज दिखता है। ब्रांचेज एंड इंटायर ट्रीज आर गर्डल एंड डाई और फाइनली पौधा मर जाता है। तो डिस्ट्रॉय करंट एंड गूजबेरीज एंड अराउंड नर्सरीज। हमें जो है अराउंड द नर्सरीज में जो आसपास गूजबेरी होगी वो हमें वो क्योंकि इसके लिए वो इसका ये जो है हेट्रोसियस पैथोजन है ये उसके आसपास जो है जो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करेगा। अगर वो आसपास में गूजबेरीज नहीं होंगी तो क्या होगा, वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं करेगा। परचेज एंड प्लांट ओनली रस्ट फ्री प्लांट। हम कोशिश करें कि प्लांट रस्ट फ्री हो। इंस्पेक्ट पाइन फ्रीक्वेंटली एंड प्रून आउट एनी इन्फेक्टेड ब्रांच। हमें जो है उसको काट के अलग फेंकना है जिसमें इन्फेक्शन है। कटिंग 12 इंच 12 इंच बिलो द कैंकर, जहाँ पे कैंकर होता है ये हमें हटाना है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द पाइन डिजीज। थैंक यू।